Hello students, today we are going to discuss the concept of electric lines of forces. Okay? Now, electric lines of forces. ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से बेटा हमें दो बातों का आइडिया मिलता है. पहला तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट. दूसरा द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो पहले एक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डेफिनेशन मैं पहले आपको देता हूँ. देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बेसिकली क्या होता है बेटा, ये कोई भी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड पाथ हो सकता है जिस पर किसी भी पॉइंट अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा. ओके ना, पहले डेफिनेशन दे रहा हूं. द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, कॉपी कर ले बेटा, कॉपी करते जाए. आज कॉपी करने का काम थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि यहां पे स्केच करना होगा, हमें स्केचिंग वर्क ज़्यादा होगा. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी जिन्हें मैं डिक्टेट करूंगा और आपको नोट करना होगा. ठीक है? द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन और the curved path at any point on it if the tangent is drawn in the forward direction. Forward direction. The electric line of force is that imaginary straight line or the curved path at any point on it if the tangent is drawn in the forward direction. It gives the direction of electric field at that point. Guess the direction of electric field at that point. So the electric line of force is the imaginary straight line or the curved path at any point on it. If the tangent is drawn in the forward direction, it gives the direction of the electric field at that point. Okay, copy करें इसको. Done? Okay? Now, or it can be defined, it can also be the path, imaginary path. Path traced by the unit positive charge. It can also be defined as the imaginary path traced by the unit positive charge placed
in the electric field. If it is free to do so. Okay? It can also be defined as the imaginary path traced by the unit positive charge placed in the electric field if it is free to do so. Got it? Okay? बेटा अगर एग्जाम्स में डेफिनेशन आता है तो ये ऊपर वाला लिख के आना है. क्लियर? ये नीचे वाला जो मैंने आपको आइडिया दिया है ये बेसिक एक आइडिया है. गॉट इट? ओके, कॉपी कर लिया? डन? अब बड़े ध्यान से देखिए. अब बड़े ध्यान से देखिए. Let us suppose it is the electric line of force. I am saying that this curved path is the electric line of force. Now, I am considering the point A. If the tangent is drawn to this path, at the point A in the forward direction, it gives the direction of the electric field at the point A. Similarly, if the tangent is drawn at any other point, say B, on this curved path, again the tangent is to be drawn in the forward direction. Now this drawn tangent, it gives the direction of the electric field at the point B. Got it? Okay, sirs. So what does electric line of force tells us? Electric line of force is that imaginary concept which is introduced to define the direction of the electric field at a point. Okay? It defines the direction of electric field at a point. बेटा डायरेक्शन कैसे पता लगेगा? If suppose say you are talking about a electric line of force, or if you are saying that if the particular path is the electric line of force, then if you are drawing a tangent at any point to the path, the point should exist on the path. If you are drawing the tangent to the path at any point on it, you will get the direction of the electric field. The tangent, remember, the tangent is to be drawn in the forward direction. Got it? Now, sirs, we have to discuss some properties of electric lines of forces. Copied? And remember, this electric line of force, it has the importance of 1 mark or 2 mark. Okay? Now, properties of electric lines of forces. अब बेटा स्केच भी करना होगा आपको. अब आपको साथ साथ स्केच भी करना होगा. सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस originates from the isolated positive charge in the radially outward direction. बेटा आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न कैसा होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट करती है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? देखिए कैसे. लेट अस सपोज वी आर सेइंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव चार्ज से एंड इट इज द आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज. तो बेटा आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न कुछ ऐसा होता है. एरोज मार्क करने मत भूलना, एरोज मार्क करने मत भूलना. ओके, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो पैटर्न होगा दैट विल बी सिमेट्रिक. द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे ओरिजिनेट्स फ्रॉम द आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड देयर डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड.
Okay, so since electric lines of forces originates from the isolated positive charge in the radially outward direction. Got it? और मैं बार बार कह रहा हूं एरो साइन लगाने मत भूलना, कॉपी कर ले इसको. Now second thing, done? कॉपी कर लिया? Now the second property, the electric line of force or say forces terminates on the isolated negative charge in the radially inward direction. बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं. ओके, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे रेडिएट दे टर्मिनेट्स ऑन द नेगेटिव चार्ज एंड देयर डायरेक्शन इज रेडियली इनवर्ड. Let us suppose we are talking about the isolated negative charge. So the pattern of the electric lines of forces is somewhat like this. The arrows, they are marked in the radially inward direction. Got it? Sketch it out. बस याद रखें पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज पर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में टर्मिनेट होती है. ओके, डन? ओके. If suppose अब यहां पे स्केच करना पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस of the system of charges. System of charges. Okay. Now the first pattern is the charges, they are plus q and minus q. Okay. Now let us suppose, for instance, we are having a system which consists of the positive and the negative charges. Then the pattern of the electric lines of forces. Is somewhat like this. बेटा एरो साइंस लगाने मत भूलना. पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगी. याद रखें एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए. डन? इट इज द पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. एरो साइंस बड़े क्लियर रखें. नाउ द सेकंड पैटर्न. Now the next pattern, like charges. बेटा like charges में दो केसेस है. ठीक है सर, पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज का पैटर्न जो मैं स्केच करने वाला हूं दोनों का सेम होगा. सिर्फ पॉजिटिव चार्ज में एरोस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे, मतलब बाहर की तरफ होंगे, और नेगेटिव चार्ज के केस में एरोस अंदर की तरफ होंगे. Let us suppose this is, let us say the charge plus q, and let us say the charge again plus q. बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस के बीच में एग्जैक्टली सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो है तो इसका मतलब यहां पर कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो होता क्या है,
अब स्टूडेंट्स आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्जेस का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न मैंने आपको पहले वाले स्नैप में फिगर में दिखाया था। तो अगर इमेजिन करिए दो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर उनको हम एक दूसरे काफी क्लोज रखते हैं तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, गॉट इट, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स उनके अंदर डेविएशन प्रोड्यूस होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न कैसे होता है? कुछ ऐसे होता है। बस ये याद रखना है कि स्टूडेंट्स अगर लाइक चार्जेस है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दोनों से आपने सिमेट्री को तो मेंटेन करना है और नंबर सेम मेंटेन करना है, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे आर इन द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। मतलब स्टूडेंट्स एक पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, पहले वाले पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के साथ स्ट्रेस पैटर्न को देखिए, क्लियरली दिखाई देगा देयर इज अ रिपल्शन। ओके, द व्हाई देयर इज अ रिपल्शन, ओके, या फिर इनका पाथ ऐसा क्यों हो गया? ऐसा पाथ बेटा इसलिए हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रिपल्शन की वजह से एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती है। बात समझ आ रही? ओके, इंपॉर्टेंट थिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली सेंटर पे जीरो बताना है आप। ओके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट इज जीरो, गॉट इट। अब बेटा लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस तो हैं, ठीक है, लेकिन चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट। लेट अस सपोज से वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज से प्लस q and the charge say plus q2. Clear? I am saying that the q1 in magnitude is greater than q2. q1 is greater than q2. अब बेटा अगर q1 is greater than q2 तो याद रखें कैसे होगा। चलिए एक काम करते हैं, मैं दोबारा से करता हूं। सिर्फ न्यूमेरिकल्स में किया था कि बेटा लाइक चार्जेस अगर होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों के बीच में कहीं जीरो होता है और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है दैट लाइज नियर टू दैट चार्ज हुज मैग्नीट्यूड इज स्मॉल। ओके, नाउ लेट अस सपोज वी आर हैविंग द चार्ज से प्लस q and we are having the charge say plus q2. Clear? I am saying that in this case this q1 is greater than q2. If q1 is greater than q2 then the electric field will be zero somewhere over here. That is, the observation point will lie near that charge whose magnitude is small. I said that q1 is greater than q2, that is the magnitude of this charge say plus q1 is greater than the magnitude of the charge say plus q2. The pattern of the electric lines of forces. कुछ ऐसे, बस ये याद रखना है स्टूडेंट्स, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा उससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपने मार्क करनी है। ओके, चार्जेस पॉजिटिव हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। ओके, तो ये बात हो गई लाइक चार्जर्स की। ओके, डन, कॉपी कर लें साथ साथ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन जीरो कहां पर है वो बताना मत भूलना।
Now since like charges में let us suppose say minus q and again minus q, the identical and the negative point charges. The electric field is again zero somewhere in between the two charges. Okay, now as their magnitudes are equal, so the electric field will be exactly zero at the midpoint, okay, on the straight line joining the two charges. So the electric field is zero over here. Again, the number of the electric lines of forces should be the same. But the arrows, they are in the inward direction. Arrows are to be marked in the inward direction. Maintain the symmetry. This way. Okay? Got it? Done? कॉपी कर लें इसको. Now says the like charges. Again, both the charges are negative. Let us suppose say we are having the 2 point charges, say minus q1 and minus q2. Let us suppose say this q1 is greater than q2. Okay. Q1 is greater than Q2. That is, the magnitude of first charge is greater than the magnitude of the second charge. So, let us suppose say minus Q1 is somewhere over here and minus Q2 is somewhere over here. Okay? So, since we had done in the numericals that the electric field will be somewhere zero on the straight line joining the two charges, but that observation point will lie near that charge whose magnitude is small. So since let us suppose the electric field is zero somewhere over here, okay, and the number of the lines of forces which are to be marked, the number of the lines of forces which are terminating over the charge, say negative q1, they should be greater than the number of electric lines of forces which are terminating over the charge, say negative q2. Okay. बेटा यहां पर पैरेलल दिखाना है, यहां पर पैरेलल दिखाना है, यहां पर और यहां पर. This way. Done? Copy it. Done? Okay, now sirs, the first property was that the electric lines of forces, they originates from the isolated positive charge in the radially outward direction, and the second property was that the electric lines of forces, they terminates over the isolated negative charge in the radially inward direction. Fine. Now the third property, I will teach you that property which gives you the idea of the strength of the electric field in the given region. Okay. Now the third property is, since
if suppose the number density of the electric lines of forces in a region is more, okay, then there would be greater magnitude of electric field in that region. Okay, मतलब बेटा कोई भी आप एक प्लेन सरफेस इमेजिन करें, उस प्लेन सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होती हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होती हैं, उससे आपको स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन पता लगता है। मतलब जितना ज्यादा नंबर डेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, जितना ज्यादा नंबर डेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जितना नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कम होगा उतना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, सो द थर्ड प्रॉपर्टी, ग्रेटर द नंबर डेंसिटी ऑफ the electric lines of forces in the region stronger is the electric field in that region and vice versa. मतलब इसका उल्टा भी एक्सप्रेस करेगा। अगर स्ट्रेस नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कम है तो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ओके ओके, कॉपी करें इसको। डन। greater the number density of the electric lines of forces in the region, stronger is the electric field in that region, and vice versa. Now let us suppose this. I am giving you the illustration. Let us suppose in a region there exists a pattern of the electric line of force like this. Let us suppose it is the pattern of the electric lines of forces in a region. Okay, then what are you going to say? We are going to say that the strength of the electric field at the point A, the strength of the electric field at the point B, they are different. Why they are different? Because since the number density over here, it appears somewhat smaller than the number density over here. Okay, number density कैसे पता लग रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में गैप देखिए, स्पेसिंग देखिए, जितना ज्यादा स्पेसिंग होगा उतना नंबर डेंसिटी कम होगा, और जितना स्पेसिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में कम होगा उतना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, यहां पर स्पेसिंग ज्यादा है तो नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का यहां पर कम है, यहां पर स्पेसिंग कम है तो नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का ज्यादा है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू से, वी आर गोइंग टू से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी इट विल बी ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए। That is, the magnitude of the electric field at the point B is greater than the magnitude of the electric field at the point A. बात समझ आ रही? ओके, क्लियर? ओके, ठीक है, कॉपी कर लें इसको। ये इंपॉर्टेंट वन मार्कर, ये इंपॉर्टेंट वन मार्कर है। ओके, नाउ सिंस the fourth and the most important property, since जब बेटा हम मैग्नेटिक्स करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट करेंगे, उसके अंदर हमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस करना होगा। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कर रहे हैं। सिंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी क्लोज लूप्स नहीं बनाती, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप्स हमेशा बनाती हैं। ओके, सो द फोर्थ प्रॉपर्टी व्हिच इज द क्लियर डिस्टिंक्शन
between the electric and the magnetic lines of forces. सिर्फ ये फोर्थ प्रॉपर्टी ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन है. इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस never forms the closed loops. बेटा closed loops नहीं बनाएगी कभी. They never forms the closed loops. Okay? अगर बेटा closed loops हैं तो वो पैटर्न इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का एग्जिस्ट नहीं करेगा. गॉट इट? ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी. सेंस चार्ज्ड कंडक्टर्स अगर होते हैं तो चार्ज्ड कंडक्टर्स का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न कैसा होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ चार्ज्ड conductor. Okay, let us suppose it is say the metallic sphere. Let us suppose it is the metallic sphere. Okay, and this metallic sphere, it carries some positive charge. Okay, some positive charge is uniformly distributed over it. Now since the pattern of the electric lines of forces, it would be somewhat like this. That is, the electric lines of forces, they are always perpendicular at every point on the surface of the charged conductor. Got it? और बेटा मेटालिक कंडक्टर की बात हो रही है या फिर कंडक्टर की बात हो रही है, चार्ज कंडक्टर की बात हो रही है, तो उसके अंदर एक बात याद रखना, चार्ज कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है. चार्ज्ड कंडक्टर के इंटीरियर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. दूसरी एक और बात, कोई भी कंडक्टर अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तब भी कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. ओके, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ चार्ज कंडक्टर आर ऑलवेज perpendicular, are always perpendicular at every point on its surface. ओके, ये फिर से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. कंडक्टर का शेप जैसा मर्जी हो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे आर परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस. ओके, क्लियर? Now, says, how to mark the uniform electric field on paper? Uniform electric field. बेटा कई बारी न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी यूनिफॉर्म, इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म. ओके, तो अभी के लिए सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बेटा वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट पर सेम हो, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड which has same magnitude and direction at every point. बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए. ओके, इससे थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, greater the number density of the electric lines of forces in the region, stronger is the electric field in that region. Okay, मतलब जितना ज्यादा नंबर डेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अभी बात कर रहे हैं सेंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म अगर होता है
तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हर पॉइंट पर सेम होती है। और स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, जिससे कि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में जो स्पेसिंग है वो सेम बनी रहे थ्रू आउट। ओके, सो स्टूडेंट्स, सिंबॉलिकली हाउ टू रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? Symbolically, the uniform electric field is represented by the parallel straight lines. By the parallel straight lines. Let us suppose say A and B are the 2 points in the region in which there exists the uniform electric field. So since if the electric field is uniform, then the strength of the electric field at the point A will be exactly equal to the strength of the electric field at the point B. Okay? Clear? सिंपल सी बात समझ आ गई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गया? अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों ही बातें एग्जिस्ट करती हैं, या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाए या फिर डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए, या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दोनों ही डिफरेंट हो जाए। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी की थी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ओरिजिनेट करती है। तो वहां पर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के केस में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे वर डाइवर्जिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, पॉजिटिव चार्ज के केस में, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे हैव द डाइवर्जिंग नेचर, उनके बीच में गैप इंक्रीज होता जा रहा था। तो गैप अगर इंक्रीज होता जा रहा तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जा रहा था। बात समझ आ गई? तो अभी के लिए सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, या फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस, कैसा भी सिस्टम आ जाए, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होता है। ओके, now behavior of the conductor in the uniform electric field. Okay, let us suppose this, कोई भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर को अगर आप एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? जब किसी भी कंडक्टर को आप एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो स्टूडेंट्स एक बात तो पक्की होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज टू बी जीरो। ओके, और दूसरी बात स्टूडेंट्स, जब आप कंडक्टर को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो स्टूडेंट्स कंडक्टर का पोलराइजेशन होता है। ओके, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बेटा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, और एक साइड पर अकोमुलेट होना स्टार्ट करते हैं। तो जिस साइड पे अकोमुलेट करते हैं वो वाला साइड इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। ओके, ये अकोमुलेशन तब तक होता है जब तक कंडक्टर के इंटीरियर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। जब कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है तब बोलते हैं कंडक्टर का पोलराइजेशन हो गया। ओके, क्लियर? अब बेटा, कंडक्टर की ऑपोजिट फेसेस पर इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो बेटा, जिस फेस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा उस फेस पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का टर्मिनेशन आपने शो करना है, और जिस फेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उस फेस पर आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ऑरिजिनेट करना। क्लियर? और खास बात ये ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे शुड बी परपेंडिकुलर, दे शुड बी परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर। ओके, अब ध्यान से लेट अस सपोज इट वाज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स ये कोई भी एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इस कंडक्टिंग स्फीयर को हमने इसके अंदर प्लेस करना। तो when we are placing this conducting sphere in this uniform electric field, then the pattern of the electric lines of force in the given region
Okay, it will change. How does it changes? ध्यान से देखिए. When the conductor is subjected to the external electric field, and if the electric field was uniform, then on the account of polarization, the equal and opposite charges, they get developed on the opposite faces. On the opposite faces of the conductor, one face becomes electron rich and the other face becomes electron deficient. So since the electric lines of forces the pattern of the electric lines of forces, it somewhat changes like this. बेटा यहां पर तो यूनिफॉर्म फील्ड है, नेगेटिव चार्ज यहां पर डेवलप हुआ था, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे विल टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज एंड द इंटीरियर ऑफ दिस कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज जीरो. Now the electric lines of forces they originate from the positive charge. अब बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फिर आगे जाके पैरेलल हो जाती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टू मार्कर एग्जिस्ट करता है, बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. बात समझ आ गई? कितना काम क्लियर हो गया? ओके. नाउ स्टूडेंट्स, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टी है ये 2 मार्क्स में बेटा पूछी जा सकती है. ओके, इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट. स्टूडेंट्स, नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर. बेटा कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती. क्यों नहीं करती है देखते हैं. लेट अस सपोज say these are the two electric lines of forces, these are the two different electric lines of forces, and suppose say they are intersecting at this point say A. Okay, now if they are intersecting at this point A, then as per definition of the electric line of force, electric line of force was that path at any point on which if the tangent is drawn in the forward direction, it gives the direction of the electric field. So suppose to this curved path, if we are drawing the tangent in the forward direction, to this curved path we can also draw the tangent in the forward direction. Means at this intersection point two tangents can be drawn, which would mean that there exists two different directions of the electric field at the point A. It is impossible. Why it is impossible? Because electric field is a vector quantity and at a given point it can have only one direction. Okay, so the most important property, no two electric lines of forces no two electric lines of forces can intersect each other. Okay, it is so because if they intersected each other, sected each other, then at the intersection point two tangents can be drawn. Which means there exists two different directions of the electric field. Okay, which is not possible. ओके बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई
two electric lines of forces can never intersect each other. So students, answer to that question is written on the whiteboard. और बेटा इस आंसर को इन वर्ड्स की सीक्वेंस में ही रखना है आपने. ओके, आप इसे नोट कर लें. Done? So students, it is all for today. In the next lecture, I will discuss the new topic, the electrostatic potential and the electrostatic potential difference. Okay? Thank you.